हाय गाइस, वेलकम टू लीगलॉजी बाय कोमल। आज की वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 3। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सेक्शन 3 हमें बताता है कि एविडेंस किस चीज का दिया जा सकता है और किस चीज का नहीं। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue, facts directly in question, and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant, as declared relevant under the Act, and of no others. सेक्शन 3 ये कहता है कि कोर्ट में सिर्फ दो तरह के फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है। फर्स्ट इज फैक्ट्स इन इशू, यानी वो फैक्ट्स जो केस का मेन मुद्दा है, और सेकेंड इज रेलेवेंट फैक्ट्स, यानी वो फैक्ट्स जो केस से डायरेक्टली लिंक्ड हैं और लॉ के मुताबिक रेलेवेंट माने गए हैं और किसी और फैक्ट का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। Explanation: This section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure. लेकिन अगर कोई लॉ जैसे सिविल प्रोसीजर कोड किसी को रोकता है एविडेंस देने से, तो वो एविडेंस अलाउड नहीं होगा। जैसे अगर किसी ने बॉन्ड पहले नहीं दिखाया तो बाद में कोर्ट मना कर सकती है। Note: in the definition, the word may is used because in some cases evidence need not be given. For example, murderer confessing the feelings of a person. इस प्रोविजन में मे का यूज इसलिए किया गया है, इसका मतलब हर बार जरूरी नहीं कि एविडेंस दिया ही जाए। जैसे अगर कोई अक्यूज्ड खुद ही कन्फेस कर ले। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। This term, given in suit or proceeding, illustrates that BSA applies to both civil and criminal law. प्रोविजन में सूट या प्रोसीडिंग का मतलब है कि ये सेक्शन सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस पर अप्लाई होता है। So the crux is evidence may be given of facts in issue and legally relevant facts. Evidence cannot be given for facts that are barred under civil procedure laws. Restriction: if a person is disentitled by law, for example non-compliance with procedural rules like the Civil Procedure Code 1908, they cannot introduce evidence of such acts. Illustrations: criminal trial example. A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. A पर इल्जाम है कि उसने B को क्लब से मारकर उसकी मौत की। At A's trial, the following facts are in issue. ए के ट्रायल में ये फॉलोइंग फैक्ट्स इशू होंगे। ए इज बीटिंग बी विद द क्लब, क्या ए ने बी को क्लब से मारा? ए इज कॉजिंग बी इज डेथ बाय सच बीटिंग, क्या इस मार से ही बी की डेथ हुई? ए इज इंटेंशन टू कॉज बी इज डेथ, क्या ए का इरादा था बी को मारने का? ये तीनों चीजें कोर्ट में प्रूव करना जरूरी है। सिविल केस एग्जाम्पल: अ सूटर फेल्स टू प्रोड्यूस अ बॉन्ड एट फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस. This section does not allow later production of the bond unless Code of Civil Procedure 1908 conditions are fulfilled. For example, कोई पार्टी हियरिंग के टाइम पे बॉन्ड सबमिट नहीं करती और बाद में वो बॉन्ड दिखाना चाहती है, लेकिन अगर सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो नहीं किया गया हो तो कोर्ट उस बॉन्ड को अलाउ नहीं करेगी। रेलेवेंट केस लॉस: Pakala Narayanaswamy vs. Emperor 1939 defined facts in issue as facts that must be proved to establish liability or defense. इस केस में facts in issue का मतलब बताया था कि वो facts जो प्रूव करने से किसी की liability या innocence डिसाइड होती है। KG Ramesh vs. State of Kerala 2022 clarified the distinction between facts in issue and relevant facts. इस केस में फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स में क्या डिफरेंस है वो क्लैरिफाई किया था। इन द केस ऑफ शरद बिद्दीचंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 highlighted the evidentiary value of relevant facts, particularly in circumstantial evidence. इस केस में circumstantial evidence में relevant facts कितने important होते हैं ये बताया गया था। The case of Sundaram versus Rukmini 1992 emphasized compliance with the Code of Civil Procedure for admissibility of evidence in civil suits. सिविल केसेस में प्रोसीजर फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है ये हाईलाइट किया था। की टेकअवेज:
The section establishes the boundary of admissible evidence in suits and proceedings. कोर्ट सिर्फ फैक्ट्स इन इशू और लीगली रेलेवेंट फैक्ट्स का ही एविडेंस एक्सेप्ट करेगी. इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन प्रोसीजरल रूल्स, फॉर एग्जांपल सिविल प्रोसीजर कोड, एंड सब्सटैंटिव एविडेंशियरी प्रोविजंस. जो फैक्ट्स सिविल प्रोसीजर के रूल्स वायलेट करते हैं उनका एविडेंस नहीं दिया जा सकता. ये सेक्शन एक बाउंड्री सेट करता है कि क्या चीज एडमिसिबल एविडेंस है और क्या नहीं. Ensures that facts directly in issue or closely related are considered relevant for judicial determination. ये बैलेंस करता है लॉ के रूल्स और जस्टिस के प्रिंसिपल के बीच. सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. डू सब्सक्राइब लीगलॉजी बाय कोमल.